गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। फिगर में जिस तरह से बनाया है हमने, एक रेक्टेंगुलर ट्यूब्स है जिसमें दैट इज़ ट्रीटेड एज ए वेवगाइड। दो फिगर्स है, एक में टीई मोड है, दूसरे में टीएम मोड है। क्या होता है, कैसे चलते हैं, आइए देखते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम the general properties and the characteristics of the waveguide propagations. First, the conducting walls of the waveguide confine the electromagnetic field and thereby guide EMW electromagnetic wave through the multiple reflections. Means the wall boundary will behave just like the reflector for these waves, and due to this one the wave propagated in the particular directions. यहाँ हमने मल्टी रिफ्लेक्शन, जिस तरह से एक मिरर पे लाइट डालते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एंगल पर डालें तो जिस तरह से रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसी तरह से यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं. सो द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव इनसाइड द वेवगाइड इज इन फॉर्म ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन. सेकेंड, द प्रोपेगेटिंग वेवलेंथ इनसाइड द वेवगाइड lambda g, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, called the guide wavelength or the waveguide wavelength. It will be differ from the free space wavelength lambda 0. बाहर फ्री स्पेस में जो दो के बीच में दूरी होती है, दो फेसेस के बीच में, जिसके बीच में 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री के बीच में, फेस के बीच में दो पॉइंट्स होते हैं, उनको हम वेवलेंथ कहते हैं. वहाँ पे हम lambda 0 लिखते हैं. दैट इज हियर इट इज lambda g. इसको हम कहेंगे गाइड वेवलेंथ. थर्ड, what is related with the velocity? The velocity is also differ from the c, that is velocity of light in the free space, and here the velocity is less than the c. Number 4, inside the waveguide there exists a cutoff frequency fc below which the propagation is not possible. उससे कम पर इस वेवगाइड में कोई भी वेव मूव नहीं कर सकती. अब एफ सी ऑल फ्रिक्वेंसीज आर अलाउड, सो दिस वेवगाइड will behave like the high pass filter, means it allows the high frequencies from it, so that's why it is called high pass filter. Next, fifth, the dominant mode has the lowest cutoff frequency. हम कई सारे मॉड्स हो सकते हैं, इसमें जो सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम डोमिनेंट मॉड कहते हैं. नाउ सम वेवगाइड पैरामीटर्स आर डिस्कस्ड हियर. नंबर 1, दैट इज वेवगाइड वेवलेंथ. जिस तरह से फिगर बनाया हमने, एक रेक्टेंगुलर ट्यूब है, उसमें एक वेव मूव कर रही है. वेव माना कि इस तरह से मूव होती है जिस तरह से फिगर में है. तो जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं lambda g, वहाँ पे हम lambda 0 लिखते हैं. दैट इज wavelength in free space. Here it is inside the waveguide, that's why it is represented by the lambda g. So the distance traveled by the wave inside the guide in order of the undergo a phase difference of 360 degree or the 2 pi, that is called wavelength, and here the lambda g is called 2 pi by beta. Beta is phase constant. Second waveguide property is phase velocity, that is represented by the Vp. The rate at which the wave changes its phase with respect to the lambda g is defined as the phase velocity, and here we can write Vp equal to lambda g by the t, or that is lambda g into the f. F is the frequency, और यदि हम दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो 2 पाई f into the lambda g by the 2 pi, and 2 pi f we know very well, that is the omega, and 2 pi by lambda g is beta. So the Vp is omega beta, जिसे हम पहले पढ़ते आए हैं, omega by k लिखते आए हैं कई जगह, beta is phase constant here. Next, the group velocity, the velocity by which the waves actually propagates inside the waveguide. Vg is equal to
डी लैम्डा जी बाई डी टी एंड दिस इज डी ओमेगा बाई द डी बीटा। जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटीज इन सेम स्टाइल्स वी हैव आल्सो राइट हियर vp is omega by bt beta and the differential of this will be give d omega by d beta is gives the group velocity. Now we switch over to the important point of our syllabus and that is rectangular waveguide. As per by its name it is defined as the metallic tubes, hollow tubes whose shape is rectangular. Why it is waveguide? Because inside this one the wave can be propagated. It guides the wave how it propagates. That's why it is called rectangular waveguides. Now the important topics is the wave equation, its solutions. The main problem is that which type of equations are used inside the waveguides and what are their solutions. So we know very well the Maxwell equations are important for this one. So in order to determine the electromagnetic field configurations within the waveguides and the propagation characteristics, Maxwell equations are solved using appropriate boundary conditions at the wall of the guide. जैसे पहले करते हैं वो वही स्टाइल से, पर हम यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए बाउंड्री हो गई, वहाँ फ्री स्पेस था, यहाँ बाउंड्री, और बाउंड्री क्या है, दीज आर द वॉल्स ऑफ द गाइड, वेव गाइड. सो वी नो द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस. हमने यहाँ इनको इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में अरेंज किया है. से थर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, डेल क्रॉस ए इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी. फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी. सेकेंड इक्वेशन डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो एंड फर्स्ट इक्वेशन डेल डॉट डी इक्वल टू रो. ये दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन. यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन चारों यूज़ काम करते हैं. हियर द डी इज द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, बीटा is magnetic field intensity or magnetic induction, b equal to mu h, and also we know that the electric field also vary with the temperature time, e equal to e0 e raised to power j omega t and b equal to b0 e raised to power j omega t. Here j is in form of the iota, root of the -1, and omega is angular frequency. For source free regions inside the waveguide we can write del cross E equal to minus del B by del T, और इसको हम यदि सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने जैसे पहले लिखा था B इक्वल टू बी जीरो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी, तो यहाँ मिलता है डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी एंड B इक्वल टू म्यू एच लिखते ही हम. So this is equal to del cross E equal to minus j omega mu h. सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारी डिफरेंशियल फॉर्म में, डेल क्रॉस h इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ दी d एंड दैट इज एप्सिलॉन e, या हम इसको डिफरेंशियल करें तो माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन e. दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं. तो इक्वेशन 4 का एक और डेल क्रॉस ले लेते हैं. सो डेल कर्ल लेने पे डेल क्रॉस ई इक्वल टू डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस जी ओमेगा म्यू डेल क्रॉस एच. सोल्व किया जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी को, तो उस पर में डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू. जे डेल क्रॉस एच को हम इक्वेशन 5 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई. बट वी नो by the using first equations, if they source free equations, then del dot E equal to 0. So del square E equal to minus omega square mu epsilon E. Similarly, we can also use for the magnetic field del square H equal to minus omega square mu epsilon H. These two are very important equations and these are called electric and magnetic field wave equations in this particular field. In general, यदि हम दोनों को लिखना चाहें तो जिसको हम वेव इक्वेशन लिखते आए हैं, डेल क्रॉस साई इक्वल टू गामा स्क्वायर साई, वेयर
गामा इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जो बाद में डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन को हम वेव इक्वेशन कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड गामा इक्वल टू, यदि सॉल्व करें पूरा विथ सोर्स, सो दिस इज रूट ऑफ द जी ओमेगा म्यू प्लस मल्टीप्लाइड बाय द सिग्मा प्लस जी ओमेगा एप्सिलॉन, एंड इसको हम अल्फा प्लस जे बीटा भी लिख सकते हैं, जिसे हमने ट्रांसमिशन लाइन में लिखते हैं। हियर गामा इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, अल्फा इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा इज फेज कांस्टेंट, सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। ये हमने सोर्स पे नहीं माना, हमने कंडक्टिविटी मान ली है। एंड देन एप्सिलॉन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, म्यू इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड द जे इज वेल नोन दैट इट इज आयोटा and root of the -1. Now how this wave is propagated in this waveguides, जैसे फिगर एक यूज़ किया हमने, एक मोटाई है थोड़ी सी ज़्यादा, मोटाई इसकी लेंथ एंड विड्थ की तुलना में बहुत कम है। सो हम इसको कैसे मान सकते हैं, हमने ये मान के चलें कि इनसाइड दिस बॉक्स, दिस ट्यूब, रेक्टेंगुलर ट्यूब विद द ओरिजिन ऑफ दिस वन एक्सिस, सो वहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, एंड on x-axis, that is the length is the a, and the y-axis the width is the b, and along this one the z. That may be the specified length और कुछ और भी लेंथ हो सकती है, इसकी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट भी हो या कुछ लिमिटेड भी हो। तो इन z axis the wave is propagating. Very important concept is that because we are using the multiple reflections, so जो बाउंड्री कंडीशंस आएगी उसके लिए है, ये है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a फॉर द x एक्सिस, एंड y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b फॉर द y एक्सिस. Here we assume that the time dependence of the field is e raised to power j omega t, so del by del t is j omega, जैसे हम पहले लिखा है, and along z directions the z dependence can be given by the e raised to power minus j beta z. Z is the distance travel in the z axis, along the z axis. So del by del z equal to minus j beta. For a lossless dielectric medium, maximum equations जैसे हम पहले लिख के आए हैं, del cross E equal to minus j ओमेगा म्यू h लिखते आए हैं। अब यदि हमें इसके कंपोनेंट्स चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम क्या करें, del क्रॉस E को एक्सपेंड करते हैं इन फॉर्म ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे ax कैप, ax y, az कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। मन में सवाल उठता है, हमने आई जे की क्यों नहीं माने? बिकॉज हियर द j इज यूज्ड एज द iota, that's why we have considered the unit vectors along the x-axis, y-axis, z-axis in form of the small ax cap, a small ay cap, az cap. राइट हैंड साइड में भी h के कंपोनेंट लिख सकते हैं, एच एक्स ए एक्स केप, एच वाई ए वाई केप, एच जेड ए जेड केप। कंपोनेंट्स निकाल के हम इसको कंपेयर करें फॉर द एक्स कंपोनेंट्स, एंड दैट इज डेल ई जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ई वाई बाई डेल जेड इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स, एंड वी नो वेरी वेल दैट along the z axis del y del z equal to minus j beta. So this will be change del E z by del y plus j beta E y equal to minus j omega mu h x. Similarly for the y components and the z components, del E x by del z, del E z by del x equal to minus j omega mu h y. जिसको हम यदि डेल बाई डेल जेड को सब्सिट्यूट कर दिया जाए माइनस जी ओमेगा से, तो रिजल्ट आएगा माइनस जी ओमेगा ई एक्स माइनस डेल ई जेड by del x equal to minus j omega mu hy. And similarly for the z components, del ey by del x minus del ex by del y equal to minus j omega mu hz. यहाँ पे del by del z नहीं है, इसलिए दोनों कंपोनेंट्स डिफरेंशियल फॉर्म में रहेंगे इन इक्वेशन 12 जिससे बताया हमने। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं डेल क्रॉस एच के लिए। डेल क्रॉस एच इक्वल टू जी ओमेगा एप्सिलॉन ई होता है। डेल क्रॉस एच को हम डिटरमिनेंट्स फॉर्म में एक्सपेंड करें, ई को हम उस फॉर्म में रख देते हैं, ई एक्स ई वाई ई जेड फॉर्म में। तो जो इक्वेशंस मिलती है वो सेम फॉर्म में, एंड द डिफरेंशियल डेल बाई डेल जेड को हम जे बीटा काम में लेते हैं। तो इक्वेशन मिलती है हमें डेल बाई डेल एच जेड बाई डेल वाई प्लस जी
beta hy equal to g omega epsilon ex, second one for the y components, minus g beta hx minus del hz by the del x equal to g omega epsilon ey, and the last for the z components, del hy by del x minus del hx by del y equal to g omega epsilon ez. So using these 10, 11, 12 and 13a, 13b, 13c, we can calculate ex, ey, hx, hy in terms of hz and bz. These are the very important concepts for us, that these components can be written in form of the hz and the ez. कैसे आते हैं आगे देखते हैं. इक्वेशन 10 को रीअरेंज करें तो एच एक्स आ जाता है हमारे पास में माइनस जी ओमेगा म्यू 1 डिवाइड बाई जी ओमेगा म्यू डेल ई जेड बाई डेल वाई प्लस जी बीटा ई वाई. सिमिलरली फॉर द ई वाई काम में लें किससे, ये 13b से आया ई वाई हमारा, रीअरेंज किया हमने तो मिला जी ओमेगा एप्सिलॉन इक्वल मल्टीप्लाइड बाय द माइनस डेल एच जेड बाई डेल एक्स माइनस जे बीटा एच एक्स. एंड इसी प्रकार यदि हम 14a 14b से यदि रीअरेंज करके आगे चेंज करना चाहें तो एच एक्स भी आ सकता है माइनस जी ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस जी ओमेगा म्यू डेल ई जेड बाई डेल वाई मल्टीप्लाई किया हमने, और इसकी वैल्यू बी ई वाई की सब्स्टिट्यूट की हमने तो मिला में बीटा बाय द ओमेगा एप्सिलॉन माइनस डेल वाई. इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो एच एक्स इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी ओमेगा म्यू डेल ई जेड बाई डेल वाई प्लस बीटा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एच एक्स माइनस जे बीटा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन जेड डेल जेड एच जेड बाई डेल एक्स. देखिए कि दो टर्म्स है एच एक्स के, तो दोनों को रीअरेंज कर दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड में. सो एच एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और वाई एक्सिस में राइट हैंड साइड में दोनों डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल एक्स के टर्म्स आ जाती है. तो इनको यदि हम और रीअरेंज करें तो लेट द के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एंड के सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये वेव नंबर्स के फॉर्म में आ जाते हैं. के स्क्वायर वेव नंबर 2 पाई लैम्डा के फॉर्म में जिसे हम पहले करके आए. सो ये जो नई टर्म्स है उसके टर्म्स में आ जाती है एच एक्स इक्वल टू, रीअरेंज कर लिया जाए सो मिलता है हमें एच एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के सी स्क्वायर जी ओमेगा एप्सिलॉन डेल ई जेड बाई डेल वाई माइनस जे बीटा डेल एच जेड बाई डेल एक्स. देखिए इस इक्वेशन में 16a में एच एक्स में राइट हैंड साइड में दोनों जेड के कंपोनेंट्स है, एक में एच जेड है एक में ई जेड है. तो अकॉर्डिंग सिचुएशन इट इज द टी ई और द टी एम, वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट एच एक्स. सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द एच वाई ई एक्स ई वाई. एच वाई इसी तरह से मिलता है माइनस जे बाई के सी स्क्वायर ओमेगा एप्सिलॉन डेल ई जेड बाई डेल एक्स प्लस बीटा डेल एच जेड बाई डेल वाई. ई एक्स मिलता है हमें माइनस जे बाई के सी स्क्वायर बीटा डेल ई जेड बाई डेल एक्स प्लस ओमेगा म्यू डेल एच जेड बाई डेल वाई, एंड ई वाई भी इसी तरह से मिल जाता है हमें जे बाई के सी स्क्वायर माइनस दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द माइनस बीटा डेल ई जेड बाई डेल वाई प्लस ओमेगा म्यू डेल एच जेड बाई डेल एक्स. जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इन इक्वेशंस का वो ये है कि राइट हैंड साइड में दोनों एच जेड और ई जेड है, मीन्स इन दोनों के टर्म्स में हम ई एक्स ई वाई एच एक्स एच वाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं कि ये दूरी के साथ किस तरह से चेंज होते हैं. इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स क्या है, देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है. कई बार क्वेश्चन आता है so that it is not possible to propagate the TEM mode in the rectangular wave guide. Why it is not possible the TEM mode in the rectangular waveguide? तो आंसर क्या होता है चेक कीजिए. फॉर द TEM मोड जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड में
क्या होता है, एच जेड और ई जेड दोनों ही जीरो हो जाते हैं। देन द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स ई वाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए एच एक्स एच वाई सारे चारों कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे। जब चारों जीरो कंपोनेंट्स हो जाएंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। Hence, TEM mode does not exist inside the rectangular waveguide. This is a very important concept. So this is sufficient for today. Okay, thanks.